یہ میں پاسٹر حلیم صاحب کے وسیلہ سے سنیں گے. سو ہم خدا کے کلام کو اور خدا کے خادم کو اپنے ہاتھوں پر لہرا کے ویلکم کریں گے. بہت شکریہ. خدا آپ سب کو برکت دے. رب کائنات یہوہ آسمانی باپ اور اس کے پیارے بیٹے یسوع مسیح ناصری کی عظیم بابرکت خوبصورت جاری پسند نام میں آپ سب کی سلام کی ہو اور آپ سب کو گڈ فرائیڈے بہت بہت مبارک ہو. جس طرح کے مجھے بتا رہے تھے کہ گڈ فرائیڈے اس کو کیوں کہا جاتا ہے, مبارک جمعہ کیوں کہا جاتا ہے, کیونکہ اس دن ایک بڑا کام ہوا. اور اس کے بعد میں تمام بچوں کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں جنہوں نے سلیبی کلمات جو ہیں آپ کے سامنے بیان کیے. ان کے لیے زوردار تالیاں. اور لکھا ہے کہ ہم سب خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم بڑھ چڑھ کر خدا کے کاموں میں اسی طرح حصہ لیتے رہیں. سو ہم نے کلام مقدس میں سے پڑھا ہے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس 20 باب اس کی 28 کی ہے. چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیہ میں دے. میرے سے یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے اپنے بارے میں کہا کہ ابن آدم جو ہے وہ اس لیے دنیا میں نہیں آیا کہ لوگوں سے خدمت کروائے یا خدمت لے ان کے اوپر حکم جتائے, سپروائزری کرے, بلکہ ابن آدم اس لیے آیا ہے کہ خدمت کرے. کروانے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کسی سے کوئی کام کروائیں تو وہ آپ کے معیار کے مطابق, آپ کی سوچ کے مطابق اس کام کو نہ کر پائے, مگر جو آپ کے ذہن میں ہے, جو آپ نے خود کر لینا ہے, وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا. یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں خدمت اس لیے نہیں آیا کہ دوسروں سے خدمت لوں, بلکہ اس لیے آیا ہوں کہ خود خدمت کروں اور پھر اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیہ میں دوں. بتیروں کے بدلے اپنی جان فدیہ میں دوں. میرے عزیزو, فدیہ لفظ پر جب ہم غور کرتے ہیں تو فدیہ کے جو معنی ہے یہ ہے جان کا معاوضہ, قیمت سے نجات. وہ روپیہ, وہ مال یا روپیہ جیسے کسی قیدی کو سرکار میں روپیہ لے کر خرید لے, یہ اس کے معنی ہیں جو فدیہ کے ہیں. میرے عزیزو, تعلیم مقدس میں, انجیل مقدس میں یہ جو متی کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس کا ہم نے حوالہ پڑھا ہے 20 باب 28 کی ہے. اگر ہم اس کے غریب لفظ کو دیکھیں تو یونانی میں یہ ورڈ جو اس کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے لوٹرو. لوٹرو. میرے عزیزو, اس کا کنگ جیمس ورژن جو انگلش کا سب سے مقبول دنیا میں ترجمہ ہے انگلش کا, اس میں جو معنی اس کا نکالا گیا ہے, لکھا گیا ہے ترجمے میں, وہ ہے رینسم. کیا لفظ ہے؟ رینسم, جس کے معنی ہے چھڑانے کی قیمت, تمام غلاموں یا قیدیوں کے لیے ادائیگی, زندگی کے توان کے لیے بہت سے لوگ کو مصیبت اور ان کے گناہوں کی سزا سے نجات دلانا. میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے زبور 34 اور اس کی 22 ہے. جس طرح کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے چرچ کا کیا نام ہے, بائبل سچائی کا راستہ, اور یہ ہمیشہ سے اس چرچ کے پاسران کی کوشش رہی ہے کہ ان باتوں کو, ان سچائیوں کو آپ تک پہنچایا جائے جس سے بہت سے مسیحوں کو پیچھے رکھا جاتا ہے یا ان تک وہ سچائی نہیں پہنچائی جاتی. میرے ساتھ آپ پڑھیے گا زبور 34 اور اس کی 22 میں آتا ہے. ہمارا تھوڑے وقت میں ہم سیکھیں گے فدیہ کے بارے میں, ٹھیک ہے؟ زبور 34:22 پڑھیے گا ذرا. خداوند اپنے بندوں کی جان کا فدیہ دیتا ہے اور جو اس پر توکل کرتے ہیں ان میں سے کوئی مجرم نہ ٹھہرے گا. آمین. یہاں پہ زبور 34:22 میں لکھا ہے کہ خداوند یعنی کہ یہوہ کی جگہ لفظ خداوند لقب کو لگایا گیا ہے, تو یہاں پر لکھا ہے کہ
जरा और वाला पढ़ दीजिएगा, यशायाह नबी का सहीफा 44वां बाब और उसकी 6ठी आयत की तरफ पढ़ दीजिए। मेरे सिस्टर, इस तरह हमने देखा कि फिदिया के लफजी मायने जो है वो है जान का मुआवजा देना, कीमत से निजात। और यहाँ पे ज़बूर जो है उसमें लिखा है कि यहोवा अपने बंदों की जान का फिदिया देता है। हमारे उर्दू तर्जुमा में, जो हमारे पास प्रोटेस्टेंट का तर्जुमा है उर्दू का, बाइबल सोसाइटी ने जो कलमबंद किया है और शाया किया है, उसमें है कि यहोवा अपने बंदों की जान का फिदिया देता है। ये शाया पढ़िएगा जरा। खुदावंद इस्राएल का बादशाह, खुदावंद इस्राएल का बादशाह और उसका फिदिया देने वाला, और उसका फिदिया देने वाला रब्बुल फ़ाज यूं फरमाता है कि रब्बुल फ़ाज यूं फरमाता है कि मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूँ, मैं ही आखिर हूँ और मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। इसमें भी हमने पढ़ा है, जो हमारे पास उर्दू तर्जुमा है, जो यशायाह नबी का सहीफा 44वां बाब और उसकी 6ठी आयत में खुदा कहता है कि मैं ही अव्वल व आखिर हूं, मेरे सिवा और कोई खुदा नहीं है, मेरे सिवा और कोई खुदा नहीं है। मगर काबिले गौर जो बात है जिस पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, यहां पर यहोवा खुदा की बात हो रही है, रब्बुल फ़ाज की बात हो रही है, और यहां पे लिखा है यहोवा इस्राएल का बादशाह और उसका फिदिया देने वाला रब्बुल फ़ाज, फिदिया देने वाला रब्बुल फ़ाज। जिस तरह हमने ज़बूर में भी पढ़ा कि यहोवा जो है वो अपने बंदों का फिदिया देता है। मगर मेरे चीजों, काबिल गौर ये बात है कि अगर पुराने अहदनामे में यह लिखा है कि यहोवा अपने बंदों का फिदिया देता है, कि यशायाह में हमने पढ़ा है कि यहोवा ने फिदिया दिया या देने वाला है, तो फिर यीशु मसीह ने जो फिदिया दिया है, क्या यीशु मसीह यहोवा है या वो फिदिया नहीं है जो पुराने अहदनामे में इन हवाला जात में लिखा हुआ है? बहुत ये गौर तलब बात है। जब हम इस पर गौर करेंगे, इसकी रिसर्च करेंगे, इसको जानने की कोशिश करेंगे, बहुत से हमारे मसीही जो हैं इन हवाला जात की बिना पर ही, जो खास तौर पे ओनली जीसस है, वो यीशु मसीह को ही यहोवा कहते हैं, क्योंकि वो इन हवाला जात को पेश करते हैं कि यहोवा फिदिया देने वाला है। तो यहोवा ने ही फिदिया दिया है, यानी कि यीशु मसीह यहोवा है। मगर मेरे सिसो, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इस सच्चाई को जानने की जरूरत है। मेरे सिसो, हमने किंग जेम्स में पढ़ा, देखा कि उसमें लफ्ज जो है फिदिया के लिए रैंसम आया है। मत्ती के इंजील में क्या आया है? रैंसम। इसका मतलब है छुड़ाने की कीमत का मान। और मेरे सिसो, ये जो ज़बूर में फिदिया का लफ्ज है, इसमें किंग जेम्स का जो वर्जन है इंग्लिश बाइबल का, उसमें रैंसम नहीं आया, रैंसम नहीं आया, बल्कि उसमें लिखा हुआ है रिडीमीट। इसका मतलब है फिदिया देना, छुड़ाना या बचाना। इसका मतलब क्या है? फिदिया, छुड़ाना और फिर बचाना। और मेरे इंग्लिश बाइबल का गुड न्यूज वर्जन, ये मेरे पास गुड न्यूज की बाइबल है इंग्लिश की, इसमें जहां जहां भी पुराने अहदनामे में फिदिया का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, इसमें कहीं भी फिदिया नहीं लिखा, बल्कि यहां पर लिखा है कि प्रोटेक्ट इस्राइल, प्रोटेक्शन। उर्दू तर्जुमा में लफ्ज क्या है? फिदिया है। मगर असल मतलब में हम जब देखते हैं या दूसरे ताजर का मुताया करते हैं, तो वहां पर ऐसा हरगिज़ नहीं लिखा, बल्कि वहां पर लिखा है खुदा हिफाजत करने वाला, खुदा हिफाजत करने वाला, खुदा बचाने वाला। और बहुत से लोग इसी मुकाबले का शिकार हैं। और खास तौर पे हमारा जो तर्जुमा करने वाले थे, उन्होंने, मैं समझता हूं, बड़ी मक्कारी से काम लिया है यीशु मसीह को खुदा साबित करने के लिए। बहुत सी आयात में ऐसे लफ्ज कोट किए हैं जिससे आम फहम बंदा जो है वो यही समझेगा और यही कहेगा कि यहोवा फिदिया देने वाला है, यहोवा फिदिया देने वाला है। मगर ऐसा हरगिज़ नहीं है। खुदा ने अपने बेटे को बख्श दिया
दिया, खुद को उसने नहीं बख्शा। ना खुदा कभी बदलता है, खुदा की ये बात ही नहीं है कि वो बदले या अपना इरादा बदले या अपनी सोच को बदले या अपने आप को बदले, बल्कि खुदा कहता है कि मैं ला तब्दील खुदा हूं, मैं ला तब्दील खुदा हूं। और फिर खास कलाम मुकद्दस में लिखा है, यीशु मसीह ने भी कहा खुदा रूह है, खुदा रूह है। और यीशु मसीह ने कहा कि रूह का गोश्त और हड्डी खून वगैरह नहीं होता। और मेरे शिष्यो, अगर खुदा ने फिदिया दिया है तो खुदा का तो फिर खून बहा होगा, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि फिदिया किसने दिया है? खुदा के बेटे ने दिया है, यीशु मसीह ने फिदिया दिया है। और ये खुदा की मोहब्बत है, खुदा के मंसूबे की तकमील है। खुदा ही निजात देता है, मगर वो देता किसके वसीला से है? खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से निजात देता है। और फिर एक और बड़ी काबिल गौर बात है, अगर खुदा ने फिदिया दिया है तो किसको फिदिया दिया है? सवाल है, अगर खुदा ने फिदिया दिया है तो किसको फिदिया दिया है? क्या खुदा से बड़ा है जिसे खुदा ने खरीदा है? हरगिज़ ऐसा नहीं, बल्कि लोग जो थे गुनाह के सबब से खुदा के मुजरम थे, गुनाह के कैदी थे, और यीशु मसीह ने अपना कीमती खून देकर खुदा बाप से खरीदा है खुदा के लिए। खुदा बाप से खरीदा है किसके लिए? खुदा के लिए। मेरे साथ जरा पढ़िए प्रकाशिका की किताब में से पहला बाब जरा निकालिएगा। पहला बाब और उसकी 5 आयत में लिखा है, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में प्रकट उठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे, जो हमसे मोहब्बत रखता है, जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी और हमको एक बादशाही भी दी और अपने खुदा और बाप के लिए कान भी बना दिया। किसके लिए? खुदा, अपने खुदा और बाप के लिए। मेरे दोस्तों, यीशु मसीह ने हमें खुदा के वास्ते खरीदा है, क्योंकि हम गुनाहों में इस कदर चले गए थे कि खुदा की कुर्बत से हम दूर हो चुके थे, हम खुदा के मुजरम थे और हमारे गुनाहों की सजा जो है वो मौत थी, क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। और हम पर मौत लागू हो चुकी थी, मगर यीशु मसीह ने उसके बदले में अपना कीमती खून जो है सलीब पर बहाया है, यानी फिदिया दिया है। ये फिदिया है कि हम पर मौत लागू हो चुकी थी, क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। मगर यीशु मसीह ने अपना कीमती खून बहाकर हमें उन गुनाहों के बदले में उसने अपना कीमती खून बहाया, ताकि हमारी मग़फ़िरत हो सके, हम निजात को हासिल कर सके, हम खुदा के बेटे और बेटियां बन सके। यीशु मसीह ने फिदिया दिया है, किसको? किसके आगे अपना फिदिया पेश किया है? बाप के आगे, बाप के आगे। और खुदा के वास्ते यीशु मसीह ने हमें खरीदा है। और मेरे दोस्तों, बहुत जरूरी है कि हम इस सच्चाई को जान जाएं। अगर कोई हमारे सामने ये यशायाह का या ज़बूर का या पुराने अहदनामे से कोई भी ऐसा हवाला रखता है कि यहोवा फिदिया देने वाला है, तो हमें उसका पता होना चाहिए, हमें उसका जवाब देना आना चाहिए कि जो जिन किताबों से यानी इंग्लिश बाइबल से उर्दू का तर्जुमा किया गया है, उससे हमें कहना चाहिए कि इंग्लिश बाइबल में ऐसा हरगिज़ भी नहीं लिखा, बल्कि पुराने अहदनामे में जहां जहां फिदिया का लफ्ज आया है वहां पर है छुड़ाने वाला, बचाने वाला, हिफाजत करने वाला। और खुदा जो है वो अपने लोगों को बचाना जानता है, उनकी हिफाजत करता है, उनको मुसीबतों से
बीमारियों से, गुनाहों से छुड़ाता है। और किसके वसीला से छुड़ाता है? यीशु मसीह के वसीला से। सो मेरे दोस्तों, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना कीमती खून बहाया है और जरूरत इस बात की है कि हम उसके फिदिया को कबूल करें, उसके फिदिया को एक्सेप्ट करें, कबूल करें और उसकी कदर करें। क्योंकि यीशु मसीह एक बार कुर्बान हुआ है, यीशु मसीह एक बार कुर्बान हुआ है और हमारी अब्दी खलासी कराई है। कैसे खलासी कराई है? अब्दी। और जिस तरह अबू जी भी बता रहे थे, अगर हम इसकी कदर नहीं करते, फिर गुनाहों में जाते हैं, तो लिखा है कि हम यीशु मसीह को दोबारा से मसलूब करते हैं और फिर हम उसको अलानिया सलीब करते हैं। मेरे दोस्तों, गौर करके देखें यीशु मसीह के कलवरी के उस वक्त की तरफ, कितना यीशु मसीह ने दुख सहा है, कितनी यीशु मसीह ने मार खाई है और फिर कितना उसको लाम ताम किया गया, उसके मुंह पे थूका गया ताकि वो हमारे लिए कुर्बान हो सके, ताकि हम उस अब्दी मौत से बच जाए, हमारी मगफरत हो सके, हम हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सके। सो बहुत जरूरी है कि हम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देता कबूल करते हुए हमेशा उसको तकते रहें, उसकी सलीब को तकते रहें, वो हमारे सामने वो सारा मंजर रहे, ताकि हम खुदा बाप की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करें और हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सकें। सो खुदा इस्लाम की सिला से मुझे और आप सबको बड़ी सवाल अपनी आंख को बंद करेंगे।